अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह। चल रहा है नहीं चल रहा है माइक। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. সুইচটা বন্ধ করে দেখেন তো। अम्मा बाद ये माइक इधर दे दीजिए, नहीं तो इसको ये सही है। قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. नहीं चल रहा है, माइक सही करना है। قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستبقوا الخيرات. حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম, যাবতীয় প্রশংসা হামদ ও সিত্তসানা একমাত্র মহান মনিব আল্লাহ সুবহান ও তাআলার দরবারে, যিনি আমাদের জন্য এই শাবান মাস নির্ধারিত করেছেন এবং শাবান মাসের পরেই আসছে আমাদের মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস, তা হচ্ছে মাহে রমজান। এই জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ ও শান্তির দ্বারা বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জীবনের প্রত্যেকটি আমল সম্পর্কে তালিম দিয়েছেন, সে নবীর উপরে দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিমু ওয়া বারিক আলাইহি। সম্মানিত মুসল্লিয়ান किराम, आज जो जुमा का खुतबा का मौजू है शाबान महीने का कुछ करने का और कुछ नहीं करने का काम है। आज 13 शाबान 1445 और शाबान मास महीने का 13 दिन चला गया और हमारा पास 17 दिन बाकी है शाबान महीने का। और शाबान महीने जो है रजब का बाद का मास और रमजान का पहले का मास महीने जो शाबान है, और रजबेर পরের মাস এবং রমজানের আগের মাস হচ্ছে শাবান মাস। এই শাবান মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষ রজব মাসের অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মানুষ রজব মাসে সিয়াম পালন করে থাকে আর রজব মাসের অনেক গুরুত্ব দেয়। আর রজবের পরে শাবান, শাবানের পরে হচ্ছে রমাজান। এই রমজান মাসের মানুষ অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং রমজান মাসে মানুষ অনেক সিয়াম পালন করে, রমজানের ফরজ সিয়াম। কিন্তু মধ্যবর্তী যে জায়গাটা রয়েছে সেটা হচ্ছে শাবান মাস। এই শাবান মাসের মানুষ তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না। আর শাবান মাসে এমন কোনো বড় আমল নেই যে শাবাन मासे আমল করতে হবে বেশি বেশি सियाम पालन करा छाड़ा। शाबान महीने को ऐसा कुछ अमल नहीं है ज़्यादा करने का जो 15 तारीख को होता है हमारा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में शब बारात, बल्कि और सऊदी अरब आपको शब बारात नहीं मिलेगा। कोई अमल ऐसा कुछ शाबान महीने को ऐसा कोई खास अमल नहीं है, सिर्फ ख़ास अमल है ज़्यादा रोज़ा रखने का। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को सिर्फ ज़्यादा रोज़ा रखता था, क्योंकि आदमी लोग ज़्यादा मर्तबा देता है रमज़ान को और रजब महीने को, और शाबान को इतना मर्तबा नहीं देता है, इसलिए आदमी लोग शाबान नहीं रखता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा शाबान महीने को रोज़ा रखा था, सिर्फ
थोड़ा दिन बाकी था, जैसे कोई 5 दिन 6 दिन 10 दिन बाकी है, और ऐसे पूरा महीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखता था। क्योंकि शाबान महीने को रोज़ा और रजब महीने को रोज़ा, इसको ट्रेनिंग है जो हम सामने आगे हमारा रमज़ान मास आता है, इसके लिए ट्रेनिंग करना है। जैसे कोई हम छुट्टी जा रहा है, पहले से हमारा क्या क्या खरीद करना है इसको सही करना है। कोई हम कहीं जगह पे जा रहा है, इसमें हमारा कपड़ा और टोपी और तगिया हर हर लिबास में भी हम लोग आगे से प्रस्तुत करता है। लेकिन रमज़ान को हम ऐसा मर्तबा देता है और रजब को भी मर्तबा देता है, लेकिन शाबान महीने को सिर्फ ऐसा ही है जो रमज़ान सामने आ रहा है और रमज़ान को कैसे इस्तेमाल करना, इस्तेकबाल करना है, इसलिए इससे पहले थोड़ा रोज़ा रखना है। इससे और अलावा और कुछ नहीं है। शाबान महीने को सिर्फ ज़्यादा रोज़ा रखना है, क्योंकि আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফরমাতা है, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন তোমরা নেকির কাজে কল্যাণের কাজে সহযোগিতা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারার 148 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেছেন ফাস্তাবিকুল খাইরাত, তোমরা কি করো? কল্যাণের কাজে, নেকির কাজে, তোমাদের কথায়, তোমাদের কাজে, তোমাদের আমলে প্রতিযোগিতা করো। কিন্তু আমাদের এখন আমলে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। আমলে আমরা তেমন প্রতিযোগিতা এখন করি না, শুধু আমরা দুনিয়াবি কাজে এখন প্রতিযোগিতা করি। কে বেশি বেশি বড় বড় বিল্ডিং বানাবে, কে দামি মোবাইল কিনবে, কে কোন পোশাক কিনবে, কে কোন গাড়ি কার থেকে কে বেশি কিনবে, ऐसा प्रतियोगिता এখন আমাদের সমাজে হয়। ये बंदा ने 2 तला घर बनाया, हम 3 तला बनाएगा। ये बंदा ने दामी मोबाइल लिया, हम इससे भी दामी मोबाइल लेगा। ये बंदा अभी गाड़ी लिया, इससे भी हम गाड़ी अच्छा लेगा। ये बंदे ऐसे एक बंगला बनाया, इससे भी बंगला बनाया, इसका भी ये प्रतियोगिता चले। किंतु আমলের प्रतियोगिता नहीं। ये बंदा ज़्यादा अमल किया है, इससे भी हम बेहतर अमल करने का। ये बंदा ज़्यादा सदका दिया है, इससे भी हम ज़्यादा सदका देगा। ये बंदा ज़्यादा तहज्जुद पढ़ता है, इससे भी हम ज़्यादा तहज्जुद पढ़ेगा। ऐसे ही प्रतियोगिता करने का, এভাবে আপনাকে আমলের প্রতিযোগিতা করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন ফাস্তাবিকুল খাইরাত, खैरात बहुत खैरात है। खैरात एक नहीं है, जितना दुनिया पे खैरात है সকল खैराতের জন্য কি করতে হবে? আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জন্যই বলছেন। আর প্রতিযোগিতার মধ্যে হচ্ছে আমাদের এই শাবান মাসে বেশি বেশি ज़्यादा रोज़ा रखना है। इससे और कोई रोज़ा रख के रमज़ान जो सामने आ रहा है, এই জন্য এটার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। शाबान महीने को आप कैसे रोज़ा रखेगा? जैसे कोई आप 10 रोज़ा भी रख सकता है, 20 रोज़ा भी रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान करीब आ जाता था उस टाइम पर रोज़ा नहीं रखता था, लेकिन शाबान से पहले रोज़ा रखता था। और सबसे बेहतर रोज़ा है एक दिन छोड़ के एक दिन रखिए, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखा था और एक दिन नहीं था। ये सबसे बेहतर सियाम है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है इन्नी अहब्बु सियामिल्लाहि सियामु दाऊद अलैहिस्सलाम का सियाम है, ये सबसे बेहतर सियाम है। ये बेस्ट सियाम है। दाऊद अलैहिस्सलाम कैसे सियाम पालन करता था? एक दिन रोज़ा रखता था और एक दिन नहीं रखता था। ये दाऊद अलैहिस्सलाम का सियाम है। ऐसे भी आप रख सकता है इस महीने को। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी जितना दिन पहले गया था बहुत दिन रोज़ा रखता था, और भी हम सामने बहुत दिन बाकी है। जैसे कोई रमज़ान का 5 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है, उस टाइम पे रोज़ा नहीं रखने का, इससे पहले रोज़ा रखने का। इसको रमज़ान जो आ रहा है आपको खींच के आपको रेडी होना है। जब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए हम रेडी है और हम रमज़ान को भी रोज़ा रखेगा। इसलिए हम अभी ट्रेनिंग चल रहा है हमारा। कोई इंटरव्यू लाइसेंस बनाने के लिए भी ट्रेनिंग होता है और कोई काम पे जाने के लिए भी ट्रेनिंग होता है। तो रमज़ान जो एक महीने है, इतना मर्तबा है, इतना अहमियत महीना है, इसके लिए तो ट्रेनिंग होना चाहिए, सही कि नहीं? इसलिए पहले रोज़ा रखना है। थोड़ा रोज़ा रख के हम ट्रेनिंग चल रहा है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान को कैसे हम पकड़ाएगा, इसलिए थोड़ा रोज़ा रखना है और रोज़ा रख के रमज़ान को इस्तेकबाल करना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़ा रखता था, क्योंकि और जितना नफल रोज़ा रखता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान महीने को और रजब महीने से ज़्यादा, रमज़ान का बाद में शाबान महीने और रजब महीने को 2 महीने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़ा रखता था, बहुत जो रोज़ा रखता था। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, जे एक रवायत है उसामा इब्ने ज़ायद रज़ियल्लाहु अन्हु से, उसको पूछा गया है या रसूल अल्लाह, तो आप तो ये महीने को इतना क्यों रोज़ा रखता है? क्योंकि रजब तो हम रोज़ा रख रहे हैं और सामने जो रमज़ान आ रहा है और रमज़ान को हम रोज़ा रखेगा, तो शाबान महीने को क्यों इतना ज़्यादा रोज़ा रख रहा है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जे ये महीने को अल्लाह का पास अमल जाता है। जैसे कोई रमज़ान को तो एक अमल है, और महीने का जो रमज़ान का जो लास्ट, क्योंकि जो रमज़ान का पहले जो महीना है शाबान मास है, और पूरा जो एक साल में क्या क्या अमल किया है, पूरा शाबान मास को अल्लाह सुब्हान तआला जाता है। तो इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे ये शाबान महीने को हम ज़्यादा रोज़ा रखेगा तो अल्लाह को मालूम है कि हम हमारा अमल जा रहा है, और हम भी अभी ये शाबान महीने को रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, मालूम है ना। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি তো রজব মাসে রোজা রাখেন, রমজান মাসে রোজা রাখেন, তো শাবান মাসে আপনি এত রোজা রাখার দরকারটা কি, বা এত রোজা আপনি কেন রাখছেন, দরকারটা কি? এটা বেয়াদবি ভাষা যে আপনি এত কেন রোজা রাখেন। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমি এই মাসেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমলগুলো পৌঁছানো হয়, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখো যে আমি এই মাসের মধ্যে রোজা আসি। তো এই জন্য এই মাসে রোজা রাখার মাঝে মাঝে চেষ্টা করতে হবে, বেশি বেশি রোজা রাখার চেষ্টা করতে হবে এমনিভাবে। আর একটি রোজা যে ব্যক্তি রাখবে আল্লাহর জন্যে, एक रोज़ा जो बंदा रखता है सिर्फ अल्लाह का लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सोमा यौमुन फी सबीलिल्लाह इल्ला बअद अल्लाहु ज़ालिका वजहु अनिन नारी 70 खलीफा। जो शख्स अल्लाह का सुब्हान तआला का लिए, सिर्फ अल्लाह का खुशी का लिए, अल्लाह का लिए एक दिन रोज़ा रखता है और उसको चेहरा जहन्नम का आग से 70 साल दूर रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। 70 खलीफा मतलब 70 सना। जो शख्स एक दिन रोज़ा रखता है सिर्फ अल्लाह का लिए, तो आप देखिए जहन्नम का आगून, जो जहन्नम का जो आग है, तो हम लोग कितना अमल किया है, कितना सैया है हमारा पास, कितना गुनाह किया है। तो एक दिन रोज़ा रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल दूर रहेगा जहन्नम का आग हमारा चेहरा से। क्योंकि इसलिए चेहरा बताया क्योंकि दुनिया पे सबसे कीमत चीज़ होता है इंसान का चेहरा। इसलिए हदीस में ऐसा जिक्र किया है 70 खलीफा वजहहु अनिन नारी 70 खलीफा, उसका चेहरा जहन्नम से 70 साल दूर पे रहेगा, एक रोज़ा रखेगा। तो सामने रमज़ान आ रहा है, वो रोज़ा भी हो सकता है, वो तो फ़र्ज़ रोज़ा है। और ऐसा कोई शख्स सिर्फ अल्लाह के लिए हम एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह के लिए रखेगा 70 खलीफा, जहन्नम से उसका चेहरा 70 साल दूर रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए ज़्यादा रोज़ा रखने का, और रोज़ा एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग है मुस्लिम उम्मा का लिए। और शाबान महीने को हमारा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, सोमालिया, मिस्र और भी बहुत कंट्री में है जो शाबान महीने को 15 रात्रि को शब बारात बोलता है, सही कि नहीं? इंडिया में और बांग्लादेश में, भारत में और मिस्र में भी है, शब बारात बोलता है। अच्छा, शब बारात ऐसा कोई लफ्ज़ अरबी में है? शब बारात ऐसा कोई अरबी लफ्ज़ नहीं है। शब मतलब का क्या? रात है, और बारात मतलब का मतलब तकदीर का रात है। तो तकदीर का रात कब है वो तो मालूम होना चाहिए, वो तो रमज़ान को है। तो ये उर्दू लफ्ज़ है, ये अरबी लफ्ज़ नहीं जो शब बारात, बांग्ला में भी शब बारात बोलता है और उर्दू में भी बोलता है। शब मतलब ये उर्दू फारसी से आता है, शब मतलब रात है और बारात मतलब तकदीर है। और हमको मालूम है जो रमज़ान को, जो आखिर रमज़ान को बेजोर रात्रि में, रमज़ान को सिर्फ लैलतुल कदर होता है, वो लैलतुल कदर को हम कन्वर्ट करके हम शब बारात में लगा दिया। सऊदी अरब में शब बारात है, देखा कब चला गया शब बारात, किधर है वो, कुछ नहीं है। इसलिए शब बारात ये लफ्ज़ भी अरबी भी नहीं है, बोलता है ये लफ्ज़ उर्दू और फारसी से आया है। शब बारात मतलब कुछ नहीं है। और हमको मालूम है जी शब बारात जो लैलतुल कदर है वो आखिर रमज़ान को होता है, मतलब 20 तारीख को बाद में, 20 रमज़ान का बाद में कोई भी रात को लैलतुल कदर हो सकता है, वही लैलतुल कदर है। और हमारा उधर जो ये शब बारात बल्कि जो आदमी लोग हर रात्रि 15 तारीख को रात्रि को मस्जिद में जाता है और अच्छा कपड़ा पहनता है और आतर लगाता है और मज़ार में जाता है, कब्र में जाता है, हलवा रोटी खाता है, मौलवी को लेके आता है, थोड़ा दुआ पढ़िए, उसका कोई हकीकत नहीं है, वो एक दुर्बल ज़ईफ़ हदीस है। और हदीस में ये लफ्ज़ साबित, वहाँ से हदीस बताएगा, ये हदीस से इस लफ्ज़ साबित नहीं होता है उस रात्रि को आप ज़्यादा नमाज पढ़ने का, एक दिन बाद में रोज़ा रखने का, और मज़ार में जाने का, कब्र में जाने का, मौलवी को लेके आएगा, मिलाद पढ़ाएगा, हलवा रोटी खाएगा और मोमबत्ती जलाएगा, अगरबत्ती जलाएगा, ये पूरा ही गलत है, ये पूरा ही गलत है। शब बारात बोलते किसु नहीं যে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে শবে বারাতের নামে
একটা হাদিসের উপরে ভিত্তি করে, অথচ লাইলাতুল কদরে মানুষকে দেখবেন সবাই ঘুমায়। লাইলাতুল কদর রমজানের বেজর রাত্রিগুলোতে মানুষ ঘুমায়, অথচ শবে বরাতে লাইটিং করে আরও কি বিভিন্ন আলেমদেরকে ডেকে নিয়ে আসে যে মিলাদ পড়াচ্ছে, হাদিসে নেই। প্রতিটি ফোঁটায় ফোঁটায় নেকি রয়েছে, যেন তারা গোসল করে, কি সুন্দর টুপি লাগায়, কি সুন্দর আতর লাগায়, আর মাজারগুলোকে কিভাবে লাইটিং করে সজ্জিত করে, করে না? নাউজুবিল্লাহ। শিরকের যত আস্তানা। মাজারে যাবেন কেন? যদি কবরের উপরে এত বড় বড় ঘর থাকে তাহলে মৃত্যুর কথা আপনি ভয় পাবেন না। कब्र का ऊपर इतना घर, अच्छा घर है, तो आपको आप जब मर जाएंगे इसलिए आपको डर नहीं। क्यों डरने का, मरने का बात तो हमारा कब्र में भी इतना अच्छा, लेकिन आपको डरना चाहिए। जो कब्र सिर्फ अंधा है, सिर्फ कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ आजाब है, जहन्नम है। वो कब्र जो बाबा मर गया उसका पास जाता है, बाबा हमको कुछ चाहिए, बाबा बच्चा दे दीजिए, बाबा हमारा रिजिक दे दिए। शिरक है भाई, ये शिरक है। वो बंदा को कब्र में आप लाठी मारेगा तो कुछ नहीं कर सकता है, तो क्यों जाता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कब्र में जाता है, मज़ार में जाता है, ये शिरक है। इसलिए कब्र में नहीं जाना है। वो मर गया, वो बंदा आपको कुछ नहीं दे सकता है, इसलिए मज़ार में नहीं जाने का। और शब बारात को जो हलवा रोटी ऐसा नहीं खाने का। जो खाने का है मतलब दीन का, जो इस्लाम का जो कानून है, वो लैलतुल कदर जे आखिर रमज़ान में जो लैलतुल कदर होता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिक्र किया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कब है? रमज़ान को है, आखिर रात्र में है, वही लैलतुल कद्र, वही तकदीर है। लेकिन ये लफ्ज़ भी गलत है कि लफ्ज़ में लैलतुल शब बारात मतलब तकदीर का रात है, और तकदीर का रात हमको मालूम है कब है, क्योंकि ये हदीस जो है, ये हदीस ही बहुत ही दुर्बल हदीस है, मौजू हदीस है, अच्छा हदीस नहीं है। क्योंकि ये हदीस के बारे में हर उलमा कराम ने बड़ा बताया जे हदीस ज़ईफ़ है। सिर्फ शेखुल अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस का सही बताया, लेकिन ये हदीस से अमल नहीं साबित होता है। ये हदीस किया है, इन्नल्लाह यतअलु इन्नल्लाह यतअलु फी लैलतुन निस्फ़ मिन शअबान फ़यग़फ़िर लिजमी ख़ल्क़िही औ फ़यग़फ़िर लिजमी ख़ल्क़िही इल्ला अल-मुशरिक औ मशाहिन। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जो शब बारात जो बोलता है हम लोग, शाबान का 15 तारीख जो रात्रि में हर मखलूक का तारा देखता है, फ़यग़फ़िर लिजमी ख़ल्क़िही, हर मखलूक का तारा देखता है, इल्ला अल-मुशरिक औ मशाहिन, और जो शख्स शिरक करता है उसको नहीं देखता है, और मशाहिन जो व्यक्ति अंतरे विद्वेष रखे अन्यদের সম্পর্কে তাদেরকে দেখেন না। तो हदीस में यही जाहिर होता है, जो आदमी शब बारात जो बोलता है 15 तारीख को आप रूम पे सो जाएगा तो आपका पास कोई शिरक नहीं किया, किसी से आपको दुश्मनी नहीं है, आप सो जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको माफ़ कर देगा। ये हदीस से यही साबित होता है, फ़यग़फ़िर लिजमी ख़ल्क़िही इल्ला अल-मुशरिक औ मशाहिन। लेकिन ये हदीस से ये साबित नहीं होता है जो 15 तारीख को हम जाके मोमबत्ती जलाएगा और 1000 रकात नमाज पढ़ने का मस्जिद में आके, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका अमल ऐसा है, हम डेली नमाज पढ़ता है, तहज्जुद नमाज पढ़ता है, उसके लिए मुश्किल नहीं। 15 तारीख को रात्रि को जैसे कि हर बंदा डेली रात को 2 रकात नमाज पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ता है, उसके लिए मुश्किल, लेकिन ऐसा कोई अमल साबित नहीं है। और हर उलमा कराम जितना मुहद्दिस है, ये हदीस को बोला मौजू दुर्बल हदीस है, अच्छा हदीस नहीं है। सिर्फ शेखुल अलबानी बहुत रवाज से हदीस सही बताया, लेकिन ये हदीस से अमल नहीं साबित होता है जो 15 तारीख को हम अमल करने का। इसलिए सम्मानित मुसल्लियाने कराम, আমাদেরকে সর্বাবস্থায় কি করতে হবে कि हदीस में एक लफ्ज़ आया है, एक लफ्ज़ आया है जे 15 तारीख को देखिए, इस्लाम के भी एक बात है, जैसे कि अरबी महीना होता है 30 और 29, सही कि नहीं? अरबी महीना 30 होता है, 29 होता है। ये हदीस क्यों ज़ईफ़ है? ये हदीस क्यों ज़ईफ़ है? अरबी महीना 29 होता है और 30 होता है, 31 नहीं होता है और 28 नहीं होता है। जब आपको ये महीने को मतलब शाबान महीने को आप 29 मिल जाएगा तो आप कैसे, मतलब ये हदीस में आता है लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, निस्फ़ मिन शाबान, निस्फ़ में मतलब क्या आता है? 15 होता है, 15 होता है, निस्फ़ आधा होता है। तो जब आपको 29 महीने मिल जाएगा तो 15 आप कैसे डिवाइड करेगा? इधर 14 है और इधर 14 है, सही कि नहीं? और कितना बाकी है? 1 बाकी है, सही कि नहीं? तो एक दिन कितना दिन होता है?
24 घंटा में एक दिन होता है, तो एक दिन आधा करेगा तो 12 घंटा होता है। देखिए ये हदीस क्यों उलमाए करम बताए ये हदीस ज़ईफ़ है, क्यों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बात नहीं किया है। ये जो हदीस है लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़यग़फ़िर लिजमीइ ख़ल्क़ी इल्ला अल-मुश्रिक वल मशाइख़ औ मशाहिर, ये हदीस ज़ईफ़ इसलिए है कि हदीस में इस्लाम का जो कानून है इसका ज़िक्र साबित नहीं होता है, क्योंकि अरबी महीने 30 होता है, 29 होता है। तो ये महीना जब 29 हो जाएगा तो लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान कैसे आप निस्फ़ मिन शाबान, निस्फ़ में आधा है और लैला मतलब रात है, लैला मतलब रात है, तो 29 महीने हो जाएगा तो इधर 14 दिन है और इधर 14 दिन, कितना दिन बाकी है? एक दिन बाकी है। वो एक दिन रात मिलके होता है 24 घंटा, और 24 घंटा से आधा कर देगा तो कितना होता है? 12 घंटा। तो सुबह 6 से 12 घंटा आपको शाम को 6 बजे हो जाएगा, और रात से जब शाम से जब हिसाब करेगा तो 6 घंटा बाद में कितना? सुबह हो जाएगा, मतलब आपको रात नहीं मिलेगा। इसलिए हदीस उलमाए करम बोला ये हदीस ज़ईफ़ है, क्योंकि 29 महीना हो जाएगा तो लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान आपको नहीं मिलेगा, लैला भी नहीं मिलेगा, रात को भी नहीं मिलेगा, और निस्फ़ भी नहीं। निस्फ़ मतलब आधा है, इनुस, अब अरबी में बोलता है इधर इनुस है, तो अरबी में लफ्ज़ आता है निस्फ़ मिन शाबान। तो आप शाबान महीने को इनुस रात्रि नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 दिन इधर दे दिया, 14 दिन इधर दे दिया, और बाकी बस हमारा पास एक दिन बाकी है, और एक दिन 12 घंटा में होता है, और 12 घंटा में आप सुबह से हिसाब करेगा तो आपको फिर भी मतलब रात को शाम को 6 बजे लेके आएगा, और सुबह 6 बजे हिसाब करेगा तो फिर भी शाम को लेके आएगा, आपको निस्फ़ नहीं मिलेगा। इसलिए हदीस सही नहीं, हदीस दुर्बल है, और ये हदीस से अमल साबित नहीं होता। इसलिए हमको क्या करने का? अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदीया में ऐसा बेदात नहीं है, सऊदीया में जो ऐसा बेदात नहीं है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल नहीं किया है वो अमल मत कीजिए, क्योंकि मक्का और मदीना जो इस्लाम का उधर सही इस्लाम है। इसलिए एक हदीस है इन्नल ईमान ला यरजू इलल मदीनति कमा तारजु हय्या इला जुहरिहा, जो इल्म जो इस्लाम है हर दुनिया से सांप जैसा अपना घर को आता है, दूर से जब घर पे आता है, ऐसा इस्लाम का रोशनी, इस्लाम का नूर मक्का मदीना में आ जाएगा। गवर्नमेंट किस तरफ से है, कौन सा है, वो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत आदमी बोलता है अभी सऊदी अरब बहुत ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हर दुनिया से भी अभी अच्छा है, और मक्का मदीना अच्छा ही रहेगा। इसलिए हदीस में बोला है इन्नल ईमाना लयरजू इलल मदीनति कमा तारजुल हय्या इला जुहरिहा, इस्लाम का रोशनी कहाँ नहीं मिलेगा, और आखिर में मक्का एवं मदीना में मिलेगा। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इधर सही उलमाए कराम है, और सऊदी अरब में भी अभी ऐसा शब बरात नहीं पालन होता है, ऐसा बेदात नहीं पालन करने का, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जो अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया है वो अमल करेगा तो आपको अमल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको ये अमल नहीं करने का। और जो और एक बात है, जो कुरान का एक आयत लेके आता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका व इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, ये आयत लेके आता है शब बारात का फिट कर देता है उलमाए करम इंडिया में और बांग्लादेश में। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, इसका मतलब इस रात्रि को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान नाजिल किया है, और इस रात कब है? रमज़ान को है, रमज़ान को कुरान नाजिल किया है, शब बारात को कुरान नाजिल नहीं किया। इसलिए ये भी बहुत ही गलत है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने का, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हुक्म दिया है ऐसे अमल करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कबूल होएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला আমাদেরকে সঠিকটা বোঝার তৌফিক দান করুন, বলেন আমিন। বারাকাল্লাহু লি ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'আনি ওয়া ইয়াকুম বিমা ফীহি মিনাল আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম ওয়া কুল কওলি হাযা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরু ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম।